ہے بڑے پیر، جس کا نام ہے عبد القادر جیلانی۔ اللہ اکبر، بچے ہیں جب دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آنے کے بعد پورے گھر میں نور پھیل گیا ہے۔ امی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، باپ کا نام ابو صالح جنگی دوست ہے۔ کیسے اللہ کے ولی اللہ نے دیا ہے، اللہ نے اپنا ہم کو نبی بھی دیا تو سارے نبیوں کا امام دیا، اللہ نے ولی بھی دیا تو سارے ولیوں کا سلطان دیا۔ یہ شان ہے بڑے پیر کی۔ حضرات جب پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور آنے کے بعد آپ کے والد گرامی آپ کو لے کر چلے ہیں کہ چل بچے تیری بسم اللہ خوانی کرائی جائے، اور جانے کے بعد استاذ کے پاس بیٹھے ہیں، استاذ نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے غوث نے پڑھا نہیں ہے، جب کہا پڑھو بیٹا تو آپ نے شروع کر دیا ہے۔ اب غوث پڑھتے جا رہے ہیں، سورۃ بقرہ پڑھ دی ہے، سیقول پڑھ دیا ہے، تیسرا پارہ سیتلک الرسول پڑھ دیا ہے، چوتھا پارہ لن تنالوا البر پڑھ دیا ہے، پانچواں پارہ والمحصنات پڑھ دیا ہے، چھٹا پارہ لا یحب اللہ پڑھ دیا ہے، ساتواں پارہ واذا سمعوا پڑھ دیا ہے، آٹھواں پارہ ولو اننا نصلی پڑھ دیا ہے، نواں پارہ قال الملأ الذین استکبروا پڑھ دیا ہے، دسواں پارہ واعلموا انما غنمتم پڑھ دیا ہے۔ 11ویں میں پہنچتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں یعتذرون، پورا کر دیتے ہیں۔ 12ویں میں پہنچے وما من دابۃ شروع کر دیا ہے۔ 13ویں میں پہنچے وما ابرئ نفسی ان النفس پڑھ دیا ہے۔ 14ویں میں پہنچے ہیں وما یود الذین پڑھ دیا ہے۔ 15ویں میں پہنچے ہیں سبحان الذی اسری پڑھ دیا ہے۔ 16ویں میں پہنچے ہیں قال الملأ الذین استکبروا پڑھ دیا ہے۔ 17ویں میں پہنچے اقترب للناس پڑھ دیا ہے۔ 18ویں میں بڑے پیر پہنچے ہیں، شروع کر دیا، پورا کر دیا ہے۔ آپ کے اساتذہ نے کہا بیٹا پڑھنے آئے ہو تو پڑھانے آئے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہا بیٹا پڑھنے آئے ہو کہ پڑھانے آئے ہو؟ 18 پارے اپنے استاذ کو بڑے پیر نے وہیں بیٹھے بیٹھے سنا دیے۔ کہا بیٹا پہلے تو پڑھ ہی نہیں رہے تھے لیکن اب پڑھتے جا رہے ہو تو 18 پاری تمہیں کہاں سے یاد ہو گئے؟ کہا میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں پیٹ کے اندر تھا، میں نے اپنی والدہ کی تلاوت کو سن سن کے یاد کر لیا ہے۔ یہ شان ہے بڑے پیر کی۔ حضرات میرے پیر کا عالم تو یہ ہے، ایک انسان کی سریلی آواز تھی، بڑے ہی اچھے انداز میں وہ غزلیں یا گانے گایا کرتا تھا۔ جیسے ہی بڑے پیر کو پتا چلا ہے ایک انسان بستی کا ہے، بڑی اچھی آواز کا مالک ہے، بڑے اچھے گانے گاتا ہے، بڑے پیر نے کہا یار تجھ پہ افسوس ہوتا ہے، کاش تو نبی کی نعتیں گاتا ہوتا، کاش تو نبی کے ترانے گاتا ہوتا، کاش تو کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہوتا تو تیرا دنیا میں بھی آنا کامیاب ہوتا، تیرا دنیا سے جانا بھی کامیاب ہوتا۔ یہاں تک کہ وہ کما کے لا کے دیتا، گھر والے اس کو کھانا دیتے رہتے، وقت گزرتا گیا، راتیں آتی گئی، دن چلتا رہا، وقت گزرتے گزرتے یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی پہنچ گیا جب اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے، گھر والوں نے کھانا دینا بند کر دیا، نہ کوئی پوچھ رہا ہے، نہ کوئی پوچھ رہا ہے، نہ اس کے سونے کا کوئی مقام ہے، نہ اس کے لیٹنے کا کوئی مقام ہے، کوئی کچھ نہیں پوچھ رہا۔ جب وہ انسان مایوس ہو گیا تو وہ اس نے سمجھا اب گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے، نہ اپنے پوچھ رہے ہیں نہ بیگانے پوچھ رہے ہیں، میرا حال برا ہو گیا ہے، کہیں ایسی عالم میں میرا انتقال ہو گیا تو مجھ کو غسل دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، مجھ کو کفن دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، میری جنازے کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اس نے یہ سوچنے کے بعد ایک دل میں تہیہ کر لیا کہ اب سب نے چھوڑ دیا ہے، پوری بستی نے چھوڑ دیا ہے، خود گھر والوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ قبرستان چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد ایک قبر پہ بیٹھ جاتا ہے، جتنا دل چاہتا ہے اتنا روتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، افسوس کرتا ہے کاش میں نے زندگی گزار لی ہوتی، کاش میں نے اچھے کام کر لیے ہوتے، کاش میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہوتا۔ آج تو کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے، وہ رو رہا تھا قبرستان میں بیٹھے بیٹھے، بڑے پیر کا گزر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے کہ متقی کا جب لفظ آتا ہے تو بریلی کا امام بولتا ہے غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا۔ بڑے پیر کا گزر ہوا،
कैसे मुत्तकी हैं, कैसे दिल की दुनिया को जान लेते हैं, कितने बड़े पीर हैं। हम यहाँ बैठे हैं, आप बिल्कुल मुतमईन के साथ बैठिए, इसलिए कि मेरे गौस फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलती अला हुक्म इत्तिसाली। मैं पूरी दुनिया को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने गांव हैं, जितनी बस्तियां हैं, जितने शहर हैं, बड़े पीर फरमाते हैं नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलती अला हुक्म इत्तिसाली। पूरी दुनिया के शहरों को बड़े पीर इस तरह देखते हैं जैसे राय के दाने। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर देखे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, मुतमईन रहिए बड़े पीर आपको देख रहे हैं। कौन किस इरादे से बैठा है, कौन क्या तमन्ना लेके आता है, और अल्लाह तो खुद फरमाता इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है। कोई बड़े पीर का नाम लेकर अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है, अल्लाह उस दुआ को कबूल कर लेता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो इंसान रो रहा है, बैठा हुआ, बड़े पीर का गुजर हुआ, और गुजर होने के बाद बड़े पीर की नजर पड़ जाती है कि वही इंसान है, वही नौजवान है। कभी तो ये गाने गाता था, कभी तो गजलें गाता था। आज जितने लोग गाने सुनते हैं, खुद गौसे पाक के इस फरमान को सुनते चले जाइएगा कि गाने आज लज्जत के लिए सुने जाते हैं। अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम के शीशों को पिघला के कानों में डालेगा। कौन इंसान है जो अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है, कौन इंसान है जो अपने दिल को गानों में लगा रहा है। मेरे पीर का गुजर हुआ और होने के बाद नजर पड़ती है, नजर पड़ने के बाद देखते ही ये वही नौजवान है जो है बस्ती में गाने गाया करता था, ये तो पैसे कमाता था, आज ये कब्रिस्तान में क्यों बैठा है। बड़े पीर से कहा इसको बुलाओ, उसको बुलाया गया, कहा क्यों रो रहा है। वो आकर कहता हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं रहा है, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया हूँ। घर वालों ने जब तक खाना दिया, जब तक मैं कमाता रहा, जब तक मेरी आवाज मेरा साथ देती रही, घर वाले मेरी देखभाल करते रहे, लेकिन जब से मेरी आवाज ने साथ देना छोड़ दिया है, मैं किसी लायक नहीं हुआ हूँ, तो मुझे घर से निकाल दिया है। और निकालने के बाद मैं कब्रिस्तान में इसलिए आ गया कि काश कहीं मेरा इंतकाल हो जाए तो कहीं मुझे लाश कहीं पड़ी ना रहे। इससे पहले कब्रिस्तान में चलो, किसी कब्र में लेट जाएंगे, वहीं से जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं इसलिए आ गया हूँ। वो रो रहा था बड़े पीर के दामन को पकड़ के, रो रहा था गौसे पाक के हाथों को पकड़ के, रो रहा था बड़े पीर के कदमों को पकड़ के। मेरे बड़े पीर अपनी मसनद में आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि बेटा एक इंसान को बुलाते हैं, और बुलाने के बाद अशरफिया दी है और कहा है जाए उस बच्चे को दे के आओ जो कब्रिस्तान में रो रहा है, जिसे बस्ती वालों ने निकाल दिया है, जिसे खुद घर वालों ने निकाल दिया है। कोई वो अपने कब्र पर रो रहा है। अल्लाहु अकबर। एक इंसान जो है गौसे पाक की बारगाह से अशरफियों की थैली लेकर आया, और आने के बाद क्या होता है उस इंसान को दे देता है। वो पूछता है किसने दी है, कहां से आई है, ये अशरफिया किसने दी है। लेकिन वो इंसान जो देने के लिए आया था कुछ नहीं बताता है किसने दी है, लेकिन जैसे ही अशरफियों को छू है बड़े पीर की खुशबू आ गई है। अब वो दौड़ता हुआ बड़े पीर के पास आया है, आकर फिर अपने आंखों से आंसुओं को बहाता है, अपने हाथों को बड़े पीर के हाथ में दे के कहता है आप सारे वलियों के इमाम हैं, आपने चोरों को वली बनाया है, मैं अल्लाह की सारी मखलूक को गवाह बना के ऐलान करता हूँ। आपने कहा है जो इंसान तौबा कर लेता है अल्लाह उसे माफ कर देता है। आपने अशरफिया दे के मुझे ये साबित कर दिया है कि आप वाकई अल्लाह के वली हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत जश्न गौसुल वरा। वो इंसान कहता है बड़े पीर सब ने निकाल दिया, लेकिन आपने मेरे लिए अशरफिया भिजवाई है, तो मैं मान गया कि जिसका कोई नहीं होता उसी का तो अल्लाह और अल्लाह वाले हुआ करते हैं। अब अपना हाथ बढ़ाइए और मुझे अपने मुरीदों में शामिल फरमाइए, और बड़े पीर ये बता दीजिएगा मेरे जितने गुनाह हैं अल्लाह माफ कर देगा कि नहीं। तो बड़े पीर मुस्कुराए, कहा तो अपना हाथ बढ़ा। मुरीद करना बड़े पीर का काम है, माफ करना अल्लाह का काम।
माफ करना अल्लाह का काम है। ये शान है बड़े पीर की, ये अंदाज है बड़े पीर का। लेकिन अपने बच्चों को आलिम दीन बनाइएगा, अपने बच्चों को नबी की सीरत पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को कुरान की तिलावत पढ़ाई कराइएगा। इसलिए कि बच्चे अगर आपके मरने के बाद भी एक सिपारा भी याद कर लिया और आपकी कब्र में उन्होंने पढ़ दिया तो अल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से आपके खानदान को भी महकाएगा और आपकी कब्र को भी जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा। हज़रात जरा सुनते चले जाइएगा बड़े पीर का आलम क्या है। दरियाए दजला पे आप टहलने के लिए निकले हैं, दरियाए दजला पे घूम रहे हैं। एक बूढ़ी औरत है, नाबीना हो चुकी है, आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी है। वो रोती हुई आती है बड़े पीर के पास। कौन है बड़े पीर? 35 साल तक बड़े पीर ने जंगलों में पत्ते खाए हैं और पत्ते खाने के बाद अपने रब की इबादत की है। इसलिए कि खुद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। आज लोग पढ़ने से हटते हैं, आज तो तरह तरह के पीर हैं, आज के पीर मुरीदों को तलाश करते हैं। लेकिन वो दौर था कि मुरीद खुद पीरों को तलाश करते थे। आज तो गलियों में पीर मिल रहे हैं, चलते फिरते पीर मिल रहे हैं। लेकिन बड़े पीर कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। जी जी जी, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। ये कुतुब कौन होते हैं जानते हैं? अल्लाह बारिश इनके सदक़े में नाजिल करता है, जमीन से कल्ले इनके सदक़े में उगते हैं, हवाएं इनके सदक़े में नाजिल होती हैं और अल्लाह की रहमतें इन्हीं के सदक़े में नाजिल होती हैं। रात तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बूढ़ी औरत अपनी बहू को लेकर आती है और आने के बाद कहती है, एक रिवायत तो यूं है, दूसरी रिवायत यह है कि एक बूढ़ी माँ अपनी बच्ची को लेकर आती है और आने के बाद कहती है आप वलियों के इमाम हैं, आप सुल्तानुल औलिया हैं, लेकिन इस बच्ची के मेरे 3 लड़कियां हो चुकी हैं, इसकी शादी हो गई है, इसके ससुराल वालों ने कह दिया है अगर आपके लड़की हुई तो हम आपकी बेटी को रखेंगे नहीं बल्कि तलाक दे दी जाएगी, दहलीज से निकाल दिया जाएगा। और यहाँ तक के बड़े पीर में इसलिए आई हूँ कि आपने बिगड़ों की बिगड़ी बनाई है, आपने तो मुकद्दर चमकाए हैं। मैं बूढ़ी औरत हूँ, इसके बाप नहीं है, इसका कोई भाई नहीं है, बड़ी मेहनतें करके बड़ी मशक्कतें करके इसकी शादी की है। यहाँ पर मुझे एक हदीस याद आती है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी के घर में लड़कियां हों तो वो घबराओ नहीं बल्कि मुस्तफा की सीरत को देख लो, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं वो 4 बेटियों के बाप मोहम्मद। जी जी बेशक, हज़रात 4 बेटियों के बाप हैं हमारे नबी और कितने दर्द से हैं उनकी बेटियों ने, कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। जब रसूल पाक को शेब अबी तालिब में कैद कर दिया गया था, 3 साल खाना पीना बंद कर दिया गया था, यहाँ तक कि आपकी जो बीबी है खदीजतुल कुबरा एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा के पास आई और आकर कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं अपनी भूख का मामला होता तो बर्दाश्त कर लेती, किसी और का मामला होता तो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन आप अपनी बच्चियों के चेहरे देखिए, इनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। वो रबीए कौनैन है जो उम्मत गुनाहगार उम्मत के लिए पेट से पत्थर बांधे हैं, कभी ताइफ के मैदान में ठोकरें खाई हैं, कभी लोगों से पत्थर खाए हैं, उसी नबी ये कौनैन की बेटियां हैं, दीन मतीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा आकर कहती है या रसूल अल्लाह, अपनी भूख का मामला होता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, इसलिए कि दुनिया में अल्लाह के बाद अगर खदीजा किसी से प्यार करती है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा।